We are going to discuss St. Anne's Convent School's half-yearly examination. Here is the first question. First question is, which of the following expressions is polynomials in one variable? तो one variable में polynomial देखना है. अब यहाँ तो हमें 3 variables नजर आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता. इसके बाद polynomials की बात हो रही है. polynomials की बात हो रही है तो A and D ऑप्शन तो polynomials है ही नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या बनेगा 2 into x raised to power -1. The power of the variable involved is not a whole number. Similarly यहाँ पर अगर हम देखें क्या बनेगा y raised to power 1/2. तो again power of the variable involved is not a whole number. But polynomials में power of the variable involved is whole number. So C is the option which is satisfying the condition of polynomial in one variable. This is the answer. Second question. Second question is, if p of x is equal to this, then the value of p of 3 is. तो p of 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब मैं x की जगह पर 3 को पुट कर दूंगी. तो मेरे पास बनेगा p of 3 is equal to 1/3 into 3 cube minus 2/3 into 3 square plus 5 into 3 plus 7. इसको आप कैलकुलेट कर लोगे और यहां से आपके पास p of 3 आएगा 25. So A option correct option. Third question. If the point A, B lies in fourth quadrant, then कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब यहाँ पर ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट will be positive, y coordinate will be negative. So means A is greater than B. Answer A option. Question number 4. If the coordinates of 2 points are P -2, 3 and Q -3, -5, then the value of abscissa of P minus ordinate of Q is. तो abscissa of P का मतलब x coordinate of P कितना है? -2. बीच में माइनस का साइन. एंड ऑर्डिनेट ऑफ Q का मतलब y coordinate of Q that is -5. तो -2 minus of -5 gives you the answer as 3. So the option correct option. Question number 5. Question number 5 में line represented by this equation passes through the point this. Means this point satisfies this equation. तो इसका मतलब 2 into -1 minus k into -1 is equal to 9. यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी. Yes. And when you simplify, k turns out to be 11. So answer is B option. Question number 6. Question number 6 में AOB एक लाइन गिवन है और यहाँ पर हमें मेजर ऑफ एंगल AOC निकालना है. AOC that is इस एंगल का मेजर हमें निकालना है. अब अगर इस एंगल का मेजर निकालना है मीन्स सबसे पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. अब सिंस AOB is a line, so these are the 3 angles on a line. तो इसका मतलब इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? It will be equal to 180 डिग्री. तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी और जब मेरी x की वैल्यू आ जाएगी तो उसको मैं इसमें फीड कर दूंगी तो मेरे पास मेरा एंगल AOC अचीव हो जाएगा. And hence the answer that is the measure of angle AOC will turn out to be 77 degree. That is C option is the correct option. Question number 7. Question number 7 में perimeter of an equilateral triangle given है 60 meters. अब equilateral triangle में all sides are equal. Say मैं एक साइड को A units ले लेती हूँ. तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट से I can say A plus A is equal to 60, right? तो यहाँ से 3a equals to 60. तो साइड लेंथ कितनी आ गई? एक साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 20 and units will be meters, right? तो मेरे पास साइड लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल अचीव हो गई है 20 मीटर ईच, राइट? अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. अब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला मुझे आता है √3/4 into साइड स्क्वायर. Means this will be equal to √3/4 into 20 square.
राइट। और इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 100√3 मीटर स्क्वायर, दैट इज ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं एज ऑफ द क्यूब को लेट कर लूं a मीटर्स, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 150 मीटर स्क्वायर मीन्स 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 150। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ से एज ऑफ द क्यूब अचीव हो जाएगा which will turn out to be 5 meters, राइट। अब जब एज ऑफ द क्यूब आपके पास 5 मीटर्स आ गया तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होती है? एज का क्यूब, दैट इज 5 का क्यूब will give me the volume of the cube. So answer is 125 meter cube, that is C option. Question number 9. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data was recorded. A family is chosen at random. The probability that the family is having 2 boys is. अब 2 children हैं, right? 2 boys के लिए हमें probability निकालनी है। अब 2 boys का मतलब no girls। तो अब यहां से अगर इस टेबल से देखें तो no girls के लिए कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं? 211। तो required probability will be equal to 211 upon 1500, क्योंकि we know probability is equal to number of trials in which event happened upon total number of trials, right? So answer is D option, 211 upon 1500. Question number 10. A card is chosen at random from a deck of playing cards. What is the probability that it is a face card? अब एक deck of playing cards में कितने face cards होते हैं? 12, right? क्योंकि हर सूट के लिए 3 face cards होते हैं, that is Jack, Queen and King, और total 4 सूट्स होते हैं, तो 4 into 3 total face cards कितने होंगे? 12। अब मुझे जो है क्या देखना है कि what is the probability that it is a face card? Number of face cards 12, कितने cards में से? Total playing cards 52, so probability will be 12 by 52। इसको reduce करोगे तो answer will turn out to be 3 by 13, that is B option correct option। Now we are going to discuss section B of the paper। Question number 11, factorize 25x cube y minus 121xy cube। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में से मैं xy कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 25x स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 121y स्क्वायर। तो अब फर्दर xy इंटू, तो यहाँ आप लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर और यहाँ आप लिख सकते हो 11y का होल स्क्वायर। Now it turns out to be xy into, where this is a square minus b square, तो identity लग रही है, and this will turn out to be a plus b into a minus b, that is 5x plus 11y into 5x minus 11y। तो आपकी factorization हो गई। Question number 12. Mark the points A 2, 2, B 2, -2, C -2, -2 and D -2, 2 on a graph paper and join these points in order। अब ये काम मैंने आपके लिए पहले ही करके रखा हुआ है, बट आपको ये सब ऑन अ ग्राफ पेपर करना था, राइट? अब आपने जब ज्वाइनिंग कर दी इन एन ऑर्डर ऑफ दीज पॉइंट्स, अब आपको फर्दर कहा गया आइडेंटिफाई द फिगर सो ऑब्टेन्ड। So here we can identify this figure. This is a square. Question number 13. A bag contains tickets which are numbered from 1 to 100. Find the probability that a ticket picked at random bears a multiple of 7. सबसे पहले A पार्ट हमने करना है। अब टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है? 100। अब हमें probability निकालनी है that a ticket picked at random bears a multiple of 7। अब 1 to 100 टिकट्स में 7 के मल्टीपल्स देखने हैं कितने हैं, तो
सबसे पहले 7 फर्स्ट मल्टीपल होगा, उसके बाद 14, देन 21 एंड ऐसे करते करते लास्ट मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम 1 to 100 विल बी 98, राइट। अब यहाँ पर जब आप इनको काउंट करोगे तो दीज मल्टीपल्स आर 14 इन नंबर, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 14/100। नाउ बी पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7 है ना, तो ये क्या होगा 1 - 14/100, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा 100 - 14/100 विच इज एक्चुअली 86/100। इनको आप फर्दर डेसिमल्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। दिस विल टर्न आउट टू बी 0.14 आंसर फॉर ए पार्ट and this will turn out to be 0.86 answer for B part. Question number 14. Factorize x cube plus 13x squared plus 32x plus 20. तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, सेम है, उसको p of x ले लेती हूँ। p of x is equal to x cube plus 13x squared plus 32x plus 20। अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने का क्या मतलब है? इसको फैक्टराइज करने का मतलब है कि मुझे इसको एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखना है, राइट। अब सबसे पहले बाय हिट एंड ट्रायल अगर मैं यहाँ पर x को -1 पुट कर दूं तो दिस पॉलिनोमियल विल बिकम 0। तो फ्रॉम हियर आई कैन से कि -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। एंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आई कैन कंक्लूड that x plus 1 is a factor of the polynomial। तो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया, राइट। अब मुझे अदर 2 फैक्टर्स निकालने हैं, तो वो मैं कैसे निकालूंगी? मैं x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको x प्लस 1 से डिवाइड कर देती हूँ। जैसे मैं ये लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करूंगी आई गेट रिमाइंडर एज 0 एंड द क्वोशिएंट विल कम आउट टू बी x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, राइट। अब मुझे अदर 2 फैक्टर्स चाहिए, वो कैसे मिलेंगे? बाय फैक्टराइजिंग दिस पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 10 इंटू x प्लस 2, और इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। तो आपके पास ये 2 फैक्टर्स यील्ड हो गए, तो अदर 2 फैक्टर्स भी आपको मिल गए हैं। Hence this is the required factorization, that is your answer. Question number 15. Question number 15 में कहा हुआ है कि draw the graphs of 2x plus y equals to 6 and 2x minus y plus 2 equals to 0। तो यहाँ पर अगर मुझे इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ्स बनाने हैं तो सबसे पहले हम इस ढंग से टेबल तैयार करते हैं फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये वाली इक्वेशन कंसिडर करी है। अब इसको मैं किस फॉर्म में लिख दूंगी? y इज इक्वल टू के फॉर्म में। तो मैं x की वैल्यूज अपनी मर्जी से चूज करती जाऊंगी एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाल लूंगी। सिमिलर विल डू हियर ऑल्सो। यहाँ पर मैंने 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 वाली इक्वेशन ली है, तो इसको भी हम y इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख देंगे, और जब हम इसको y इक्वल्स टू के फॉर्म में लिख देंगे तो यहाँ पर x की हम अपनी मर्जी से वैल्यूज लेते जाएंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन में डालकर हम y की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो आपके पास जब ये वैल्यूज तैयार हो जाएंगी तो आप कार्टेशियन प्लेन बनाओगे। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आप ये सारी वैल्यूज प्लॉट करोगे तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी जो 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी, और ये लाइन आ जाएगी जो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 को रिप्रेजेंट करेगी। अब फर्दर वो कहते हैं शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ये लाइंस हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो कौन सा आप शेड करोगे रीजन? ये वाला, राइट। तो दिस इज द रीजन विच इज बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अब साथ में उसने बोला ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने को बोला है। जब आप ग्राफिकली वॉच आउट करोगे
कार्टेशियन प्लेन आपने बनाया ही होगा. We'll watch out the coordinates will turn out to be 1,4. So the answer for the coordinates of point of intersection of the two lines is 1,4. Question number 16. Question number 16 में एक फिगर अवेलेबल है. PQ parallel to SR given है. PQ perpendicular to SP given है. एंगल SQR आपके पास 28 डिग्री है. एंगल QRT आपके पास 65 डिग्री है. आपको X एंड Y निकालना है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं. दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो अगर ये पूरा एंगल 65 डिग्री है तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा? 65 डिग्री होगा. तो X कितना होगा? 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, दैट इज 37 डिग्री. X के लिए तो आंसर आ गया 37 डिग्री. इसके बाद मुझे Y निकालना है. अब अगर Y निकालना है तो इस ट्राइंगल में, दैट इज ट्राइंगल PQS, इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगी ऑफ द ट्राइंगल. तो तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. और वहां से आपके पास Y भी अचीव हो जाएगा कितना? 53 डिग्री. So both X and Y achieved. Question number 17. Question number 17 में क्या है? एक conical tent की बात हुई है. See, I have made it for you. Right? अब यहाँ पर height of the conical tent given है 24 meters. Right? And base diameter is given to be 14 meters. तो diameter तो पूरा है. अगर सिर्फ radius निकालूं तो it will be 14/2. That is 7 मीटर. ठीक है. अब आपको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस निकालना है. रेट आपको गिवन है. सो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट, एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कॉनिकल टेंट एंड एल इज द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट. तो सबसे पहले तो स्लांट हाइट देखनी पड़ेगी. अब अगर मुझे स्लांट हाइट निकालनी है तो मुझे पता है कि से मैं स्लांट हाइट को अगर L ले लूं तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. तो यहाँ से आपके पास L आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ से आपके पास फर्दर L आ जाएगा 25 मीटर. तो अगर स्लांट हाइट आपके पास 25 मीटर आ गई है तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो. पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी इंटू R इज 7, L इज 25. 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 25 स्क्वायर मीटर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट. तो अब मैं रेट देखती हूँ मुझे क्या गिवन है. मुझे ये गिवन है. तो इसका मतलब आई एम गिवन दैट फॉर 100 स्क्वायर मीटर कितने रुपीज लग रहे हैं? 210. ठीक है. सो फॉर 1 स्क्वायर मीटर कितने रुपीज लगेंगे? 2.10. राइट. तो फॉर इतना स्क्वायर मीटर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए कॉस्ट निकालनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करा जा रहा है, तो इतने स्क्वायर मीटर के लिए कितने रुपीज लगेंगे? 22 इंटू 25 स्क्वायर मीटर के लिए कितने रुपीज लगेंगे? रुपीज 2.10 इंटू 22 इंटू 25. ठीक है. इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो योर फाइनल आंसर विल टर्न आउट टू बी रुपीज 1155, which will be the final cost for whitewashing the curved surface area of the conical tent. Now I am going to discuss section D of St. Anne's Convent School's paper. Here comes question number 18. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. देखो आपके लिए मैंने फिगर भी बना रखी है. This is a lead pencil जिसमें कि ये सिलेंडर ऑफ
वुड शो कर रखा है एंड इट इज हैविंग अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, राइट। अब वो कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। तो डायमीटर ऑफ द पेंसिल अगर 7 mm है तो रेडियस ऑफ द पेंसिल कितना होगा? 7/2 mm, राइट। एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। तो अगर डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट 1 mm है तो इसका मतलब रेडियस ऑफ ग्रेफाइट कितना होगा? 1/2 mm। एंड लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 centimeters। लेंथ ऑफ द पेंसिल कितनी गिवन है? 14 centimeters। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो पहले वील वर्क फॉर वॉल्यूम ऑफ वुड। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वुड की बात करें तो इसको अगर मैं छोड़ दूं बीच वाले ग्रेफाइट वाले सिलेंडर को तो रिमेनिंग क्या है? वुड ही है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, मतलब ये ग्रेफाइट वाला जो है सिलेंडर, इसको अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे वॉल्यूम ऑफ वुड मिल जाएगा इन द पेंसिल। तो मैंने वही लिखा है, राइट। अब यहां पर भाई वॉल्यूम ऑफ पेंसिल मुझे पहले निकालना है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो यहां लेंथ तो सेंटीमीटर्स में है पेंसिल की, बाकी जो रेडियस अवेलेबल है ऑफ द पेंसिल एंड द ग्रेफाइट सिलेंडर वो mm में नजर आ रहे हैं। तो पहले एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लें। और अगर हम क्वेश्चन में ध्यान दें तो हमें दिया भी नहीं है कि वॉल्यूम mm में निकालनी है कि सेंटीमीटर में निकालनी है, तो हमारी मर्जी है ना। तो अगर मैं इस 14 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे पास क्या बनेगा? देखो, आई नो कि 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, तो 14 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 140 mm के। ठीक है, अब यूनिट्स तो सेम हो गए। अब वॉल्यूम निकालें। भाई वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालनी है तो बेसिकली पेंसिल इज सिलेंड्रिकल इन शेप, फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल विल बी पाई r स्क्वायर h। तो यहां पर पाई कितना लेंगे हम? 22/7। रेडियस ऑफ पेंसिल कितना है? 7/2 mm। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट और लेंथ ऑफ द पेंसिल कितनी है? 140 mm। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब अगर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट की बात करें तो अगेन ग्रेफाइट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, तो अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा पाई r स्क्वायर h। तो यहां पर पाई तो 22/7 ही है। अब रेडियस फॉर दिस सिलेंडर इज 1/2 और हाइट दैट इज लेंथ ऑफ द पेंसिल तो सेम ही है फॉर दिस ग्रेफाइट वाला सिलेंडर ऑल्सो, तो दैट इज 140। ठीक है, तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से आप देख रहे हो ये कैंसिल हो गया, यहां से आप देख रहे हो ये कैंसिल हो रहा है, ये आ गया। तो आपके पास आ गया 77 इंटू 70 यहां से, एंड दिस माइनस दिस क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी अगर आप देखो किसके बराबर आती है? वे 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 7 से ये कैंसिल हो रहा है, 20 आ गया, 2 से अगेन ये कैंसिल हो रहा है 10, तो 11 इंटू 10 ये आ गया 110। ठीक है, अब यहां से एक और काम सॉर्ट आउट हो गया। भाई आपको वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी तो निकालने को बोला गया था, है ना। और अगर आप ध्यान दो तो ये करते करते वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो आपके पास अचीव ही हो गई है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितनी आ चुकी है? 110 mm³। ठीक है, एंड फर्दर अगर आप दिस क्वांटिटी माइनस 110 करोगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड अचीव हो जाएगी, और वो आती है 5280 mm³। तो वॉल्यूम ऑफ वुड भी आपके पास अचीव हो गई 5280 mm³। Question number 19.
The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meters, 22 meters, 120 meters. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? तो सबसे पहले ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। अब पर ईयर के हिसाब से दिया हुआ है तो मैं यहां पर ले लेती हूं फॉर 12 मंथ। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है? रुपीज 5,000। अब अगर मैं यहां से फॉर 1 मंथ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर निकालना चाहूं तो कितना होगा? रुपीज 5,000 अपॉन 12। अब यहां तो 3 मंथ्स के लिए बात हो रही है तो मैं फॉर 3 मंथ्स निकाल लेती हूं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर तो कितना आएगा? रुपीज 5,000 बाय 12 इंटू 3। राइट, नाउ ये है 3 मंथ्स के लिए कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। राइट, बट मुझे तो जितना एरिया यूज हुआ एज पर द सिचुएशन उसके हिसाब से मुझे देखना है कि कितना कॉस्ट लगा, दैट इज कितना रेंट पे हुआ। तो अब यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो ट्रायंगुलर साइड वॉल्स की बात हो रही है और साइड ऑफ द वॉल्स आपको गिवन है। राइट, अब साइड ऑफ द वॉल्स गिवन है और ट्रायंगुलर साइड वॉल्स हैं तो बेसिकली इनको यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो निकालना है। एंड ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर ए बी सी आर द रिस्पेक्टिव साइड लेंथ एंड एस रिप्रेजेंट्स द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले एस निकाल लेंगे। इट विल बी 122 plus 22 plus 120 divided by 2. That is, it will turn out to be 132. अब मैं इस फॉर्मूले में प्लेसमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो वंस इस फॉर्मूले में प्लेसमेंट कर दिए, अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास यहां से आंसर आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। मतलब इतना एरिया यूज किया है और इसके लिए हमें रेंट देखना है कितना पे करना पड़ेगा फॉर 3 मंथ। तो अब यहां आ जाते हैं भाई फॉर 3 मंथ। अब मैं क्या करना चाहती हूँ? अब मैं कॉस्ट निकालना चाहती हूँ ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये कितनी आ जाएगी? रुपीज 5,000 बाय 12 इंटू 3 इंटू 1320। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे एंड द फाइनल आंसर दैट इज द रेंट विच वॉज पेड टर्न्स आउट टू बी रुपीज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक फिगर गिवन है। साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। तो आपको वो रिलेशन प्रूव करना है। तो यहां पर जो रिलेशन प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिख लेती हूं। भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एंगल क्यूटीआर और राइट हैंड साइड क्या है? हाफ एंगल क्यूपीआर। राइट, तो सबसे पहले एंगल क्यूटीआर चाहिए मुझे। ये है आपका एंगल क्यूटीआर। ठीक है, अब अगर मुझे इस एंगल पे जाना है तो सबसे पहले मैं अपनी जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर लेती हूँ। क्यूपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीक्यूआर। राइट, तो मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर ये x है तो ये भी कितना है? x है। राइट, फर्दर RT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं,
मतलब अगर ये y ले लूं तो ये कितना है y। ठीक है, तो अब मैं ये एंगल QTR लिख सकती हूँ। कैसे भाई, आप ट्राइंगल QTR ले लो, इसके लिए y इज एक्टिंग एज एन एक्सटीरियर एंगल, तो मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। तो y इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये एंगल आ जाएगा y माइनस एक्स यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास आ गया है y माइनस एक्स। अब आपको राइट हैंड साइड निकालने के लिए एंगल QPR चाहिए, तो एंगल QPR कहां पर है, ये रहा। अब ये एंगल आपको चाहिए तो अगेन आप ट्राइंगल PQR ले लो, इसके लिए 2y इज द एक्सटीरियर एंगल, और यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, तो 2y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस कंप्लीट एंगल। तो यहां से आपके पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल भी अचीव हो जाएगा, कितना, 2y माइनस 2x, राइट। तो यहां आ जाएगा हाफ इंटू 2y माइनस 2x, तो ये बन जाएगा अगेन y माइनस x। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द रिलेशन इज प्रूव्ड एंड देयरफॉर द डिस्कशन इज डन।